So welcome back on my channel again. Today we're gonna sort of look at one of the reading that is very interesting. That is Nutmeg, a valuable spice, and I think it's gonna worth it for you. And so before doing anything, being an IELTS student or trainer, I would like to just tell you a part about how you can improve your reading. This is only for 1 minute that I'm going to tell you a part about. So being a student, I have know-how about app. So I'm definitely sure that you are fed up with that somebody tell you a part about that read books to just improve your reading. Sir, we don't have any money for the books, right? You don't have one. Then take the subscription of newspaper. Sir, we don't have time to just take a subscription of any kind of newspaper. Let me tell you the solution of it. You should go to the Play Store available in your mobile, or you can go to your Apple Store and just download the Geo News app. It is one of the most important apps. You can just read vocab in the magazines. Also, when you just read the newspaper, it is of simple lines, but when you read magazine, then it is full of vocabulary than you can ever get from the newspaper, and it is really important for improving your. सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको क्या करनी है, आपके अपने क्वेश्चन जो है उनको हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो जब आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से परफॉर्म करें। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि लीव्स ऑफ अ ट्री आर इन शेप। आपको यहाँ पर शेप बतानी पड़ेगी कि कौन सी शेप में जो है आपके ट्रीज़ हैं। उसके बाद आ जाते हैं, ये सराउंड करता है फ्रूट को, एंड ब्रेक, जब ये ब्रेक होता है तो ओपन होता है, कि ये राइप जब होता है तब ये ब्रेक हो जाता है। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि वो चीज़ क्या है जो ब्रेक होती है। उसके बाद होता है इज़ यूज़ टू प्रोड्यूस आपका स्पाइस नटमैग। ये यूज़ होता होगा आपकी स्पाइस नटमैग को प्रोड्यूस करने के लिए। कवरिंग नोन एज द एरिल इज़ यूज़ टू प्रोड्यूस। कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए ये चीज़ जो है यूज़ होती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में कि वो क्या चीज़ है। ऑल्सो यू हैव टू जस्ट हाईलाइट सम ऑफ द वर्ड्स विच आर गिवन इन दिस ट्रू फॉल्स नोट गिवन। In the Middle Ages, most European news where nutmegs were grown. Nutmeg was grown, and where it was grown. European also has been highlighted. आपका जो VOC was the world first मेजर को आप जो है यहाँ पर हाईलाइट करेंगे, ट्रेडिंग कंपनी थी। फॉलोड बाय द ट्रीटी, एंड आपका डच हैड अ कंट्रोल ऑल ओवर द आइसलैंड वेयर आर द नटमैग grew. So these things can be reminded when you do your passage. So let's just go and do our passage first. So let us just read the passage. यहाँ पर ये कहता है कि the nutmeg tree, mystery and frankincense is a large number. Evergreen tree is the South Asia. Okay, see, it is only grown in the place okay, and the spices. Okay, the tree is thickly branched like this. You have to highlight these kind of words. With dense foliage and tough and dark green oval leaves. दिस इज़ योर आंसर, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है शेप की, एंड वी हैव टू जस्ट फाइंड द शेप रेदर देन थिकली ब्रांचेड. इट इज़ नॉट योर आंसर सर. आंसर इज़ ओवल बिकॉज इट इज़ द शेप ऑफ अ स्पेस या फिर वट एवर यू सेड. तो ओवल इज़ आवर फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, सराउंड्स द फ्रूट्स एंड ब्रेक्स व्हेन ओपन. जब वो ओपन. सो द सेकेंड क्वेश्चन वी हैड टू फाइंड आउट, जब वो कोई चीज़ ब्रेक होती है तो क्या जो है उसमें से निकलता है. एंड द फ्लावर्स एंड पेल येलो कलर्स, द फ्रूट इज़ एनकेस्ड इन अ फ्लैसी हस्क. जो फ्रूट होता है वो बंद होता है किसके अंदर, हस्क के अंदर. व्हेन फ्रूट इज़ राइप द हस्क अपलिफ्ट्स एंड टू हाफ्स इनटू अलोंग द. वेरी इजी रीडिंग आई मस्ट से. जो हस्क होता है वही आपका एक जो है आउटर शेप होती है. जब वो राइप हो जाता है आपका फ्रूट तो वो बाहर निकल कर आ जाता है. सो योर आंसर इज हस्क. ओके, सो इज यूज टू प्रोड्यूस द स्पाइस नटमैग. व्हाट इज इट? लेट अस जस्ट रीड. When the fruit is ripe, and then along with it, okay, inside the purple brown 2 and 3 centimeter long, about 2 across, surrounded by the lashy red cerumen called aril, and these are source of 2 spice nutmeg and mid. The former is produced from the derived seed. अब फॉर्मर कौन सा हुआ सर? फॉर्मर हुआ आपका एरिल. सेकंड आपका हुआ जो है
टू स्पाइस जो कि आपका मेस था वो आपका सेकंड था, पर यहाँ पर हमें जो है फाइंड आउट करना है, आपका यहाँ पर आ जाएगा सीड। सो योर थर्ड आंसर इज सीड। यहाँ पर जैसे कि कहा गया है कि फॉर्मर जो है वो प्रोड्यूस होता है आपका नटमैग से, मतलब जो नटमैग होता है वो प्रोड्यूस होता है आपका सीड से। सो आंसर इज सीड। अब हम जो है आपका थर्ड क्वेश्चन ट्राई करेंगे, थर्ड भी इसी लाइन में है। लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि वो है क्या चीज़। यहाँ पर कहता है कि कवरिंग नोन एज द एरिल टू प्रोड्यूस, यहाँ पर प्रोड्यूस होता है आपका हस्क, जैसे कि नो सॉरी हस्क ड्राई सीड एंड द लेटर फ्रॉम द एरिल। सो ये था आपका। आगे जब आप पढ़ते हैं कहता है कि फॉर्मर तो यूज जो है आपका सीड से प्रोड्यूस होता है जो आपका नटमैग था, पर जो सेकंड है वो प्रोड्यूस होता है आपका एरिल से, और एरिल इज़ यूज टू प्रोड्यूस आपका मेस। ओके सर, सर आप ये मेस कहाँ से आया? ये जो मेस है आपका ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नटमैग यहाँ पे था, आपने सीड जो है फॉर्मर इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम आपका सीड से, और सेकंड जो है आपका प्रोड्यूस होता है फ्रॉम एरिल से, सेकंड आपका मेस था। सेकंड आंसर इज़ योर मेस। अब हम इसका जो है ट्रू फॉल्स देखते हैं। अगर हमें जो है मिलता है नटमैग वॉज अ हाईली प्राइज्ड एंड कॉस्टली इंग्रेडिएंट इन द यूरोपियन क्यूजीन इन द मिडिल एजेस। ओके, मिडिल एजेस हमें जो है अपने ट्रू फॉल्स में मिला था, जैसे कि आप देख सकते हैं वी हैड लाइक दिस। आपका मिडिल एजेस वॉज द यूरोपियन न्यू वे द नटमैग वॉज ग्रोन, उनको पता था कि नटमैग कहाँ पे ग्रोन होती है। तो चलिए देखते हैं। यूज एज अ फ्लावरिंग एजेंट एंड वर एक्सक्लूसिव इम्पोर्टर। ओके, ये एक्सक्लूसिव इम्पोर्टर्स थे। So they sold nutmeg to the higher prices to the merchants based in Venus, and but they never revealed the exact location of the source of extremely valuable commodity. मतलब उनको ये पता ही नहीं था कि वो कहाँ पे ग्रो होती है। ये नहीं कह रहे। दिस इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। मैं अगर आपको बताऊँ, उनको यहाँ पर दो सेंसेस बन सकती हैं इसकी। आप जो है इसका आंसर डेफिनेटली जो है इसका आंसर आप ट्रू लिखेंगे, क्योंकि आप तो ये आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप इसका आंसर जो है वो ट्रू लिखे हैं, क्योंकि आप ये सोचोगे, यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग लगाओगे कि जब उनको पता था किसी चीज़ के बारे में कि वो कहाँ पे ग्रो होती है, तो उन्होंने उनको नहीं बताया होगा। पर यू डोंट हैव टू थिंक बाय योर सेल्फ, जो आपको आगे लिखा हुआ है वही आपका जो है आंसर होगा। तो जब वो जानते ही नहीं है कि वो कहाँ पर है, तो आंसर इज़ फॉल्स, नॉट ट्रू। सो योर आंसर शैल बी फॉल्स। अब आ जाती है VOC वॉज द मेजर फाइनेंस कंपनी, या फिर मेजर फर्स्ट कंपनी थी वर्ल्ड में। डच मर्चेंट्स फाउंडेड वोस, जो आपकी VOC थी। ट्रेडिंग कंपनीज वॉज अ बेटर नोन एज अ डट, एंड इंडिया कंपनी थी आपकी 1617 में। वोस वॉज द रिचेस्ट कॉमर्शियल ऑपरेशंस इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर आपको जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो यूज़ करनी है। अगर यहाँ पर आ जाता कि वो सेकंड कंपनी थी, जो आपकी VOC जो कंपनी है वो आपकी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी थी इन द वर्ल्ड, तो ये आपका आंसर फॉल्स होता। अगर यहाँ पर आ जाता वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी थी, या फिर कोई और लाइन जो है बना के दे देते कि वो वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी थी जो आगे हमें जो है कन्विंस कर सकती थी, ट्रू होता आपका आंसर। पर यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वॉज द रिचेस्ट ऑपरेशनल आपका ऑपरेशनल इन द वर्ल्ड। तो रिचेस्ट ऑपरेशनल इन द वर्ल्ड लिखा हुआ है, इट मीन्स ये नॉट गिवन होगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो ये कहा गया है कि वो सेकंड लार्जेस्ट थी, ना ये कहा गया है कि वो फर्स्ट लार्जेस्ट थी। तो ट्रू फॉल्स में से कोई नहीं होगा, आपका नॉट गिवन जो है इसका आंसर आ जाएगा। एंड आगे भी जो इस क्वेश्चन में है वो इसकी कहीं पर भी बात नहीं है। आपका थर्ड क्वेश्चन जो है, फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ ब्रेडा डच एंड कंट्रोल ऑल ओवर द आइलैंड फ्रॉम द नटमैग क्रूज। सबसे पहले हमें ट्रीटी ऑफ ब्रेडा एंड डच जो है वो फाइंड आउट करना। तो सिंस हमने जो है आपके सारे पैसेज पढ़ लिए हैं, सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर अस लाइक दिस, कि हमें मिडिल एजेस जो है वो पता है कहाँ पर थी। मिडिल एजेस जो है हमने फाइंड आउट की थी सर यहाँ पर। मिडिल एजेस हमें जो है वो यहाँ पर मिली थी। अब ये क्या कहता है, नटमैग वॉज ब्रोड टू यूरोप बाय, किसके द्वारा जो है वो लाई गई थी आपकी यहाँ पर,
was used a flavoring medical and preservative agent through the period. Arab were the exclusive importer of the spice to Europe. एक्सक्लूसिव का मतलब ही यही है कि वही बंदा जो है, वही कंट्री जो है उसको इंपोर्ट करती है दूसरे देशों से, जो है आपका यूरोप जो है वो इंपोर्ट करता है अरब से इसको, जो आपकी नटबैग स्पाइस थी। सो आपकी अरब के द्वारा जो है वो लाई गई थी ये स्पीसीज़। उसके बाद आ जाती है आपकी 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में कहता है कि यूरोप ने टुक कंट्रोल कर लिया है, हमें पढ़ लिया है। 17th सेंचुरी में क्या हुआ था, डिमांड ऑफ नटमैग जो ग्रो हुई थी एंड बिलीव्ड टू बी अफेक्ट अगेंस्ट द डिसीज नोन एज, हमने डिसीज़ जो थी वो यहाँ पढ़ी थी सर। डिसीज़ जो थी, यूरोप वॉज डाइंग ऑफ द प्लेग एंड अ हाईली कंटीजेंस एंड डेडली डिसीज़। जब आपके यहाँ पर कोमा लग जाता है तो उसकी जो है डेफिनेशन आगे बताई होती है कि वो है क्या चीज़। सो प्लेग इज़ आर डिसीज़। ये डिसीज़ आ गई है हमारी। फिर आ जाता है डच ने कंट्रोल कर लिया, ये हमने अब आपका क्वेश्चन अभी ट्राई किया है। पुट ऑन नटमैग टू अवॉइड इट इज़ बीइंग कल्टिवेटेड आउटसाइड द आइलैंड। क्या पुट किया जाता था आपके जो है नटमैग पे ताकि उनको बचाया जा सके फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड। सो वंस सिक्योरली इन द कंट्रोल ऑफ द वन टुक एट द कंट्रोल, दे कंसंट्रेटेड ऑल द प्रोडक्शन इन द फ्यू ईयर एंड द ट्रीज आर द आउटसाइड जोन एनीवन कोड ग्रोइंग, जो भी हो जाता था पुनिश। It is exported to covered with lime to make sure that there was no chance to fertile the seed which could be grown elsewhere would leave the islands। अब वो आइलैंड को छोड़ देते थे लाइम उनके ऊपर जो है पुट करके ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। सो यहाँ पर आपका लाइम जो है दैट इज़ योर आंसर। उसके बाद आ जाएगा आपका फाइनली ऑब्टेन्ड द आइलैंड ऑफ, उन्होंने कौन सा आइलैंड जो है वो ऑब्टेन किया सर। तो अब आ जाएगी कि आपने कौन सा आइलैंड जो है वो टुक ओवर किया। तो यहाँ पर आपका आंसर है ब्रिटिश विल गिव देम एंड द आइलैंड ऑफ रन, दे वुड इन टर्न गिव देम डिस्टेंस एंड मच वैल्यूएबल आइलैंड इन नॉर्थ अमेरिका। जो कि ये आइलैंड है वो आपको नॉर्थ अमेरिका में दिया गया है, उसका नाम है रन। सो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर आ जाएगा 70 में क्या हुआ, नटमैग प्लांट्स वर स्ट्रिक्टली टेकन टू, कहाँ ले जाए गए वो, ये आ जाएगा आपका 70 में। फ्रेंचमैन नेम, इसका नाम था, सक्सेसफुली स्मगल्ड आपका नटमैग प्लांट्स टू सेफ्टी इन, आपका जो है ये आइलैंड का नाम है, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। सो योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस। 78 में क्या हुआ, हाफ ऑफ द जो आपके आइलैंड था उसमें नटमैग प्लांटेशन वर डिस्ट्रॉयड बाय अ, किसके द्वारा जो है वो डिस्ट्रॉय होगी। सो आइलैंड ऑफ इसका नेक्स्ट इन द 78 द फॉलोइंग इरप्शन इन द कोस्ट आपका सुनामी दैट वाइप्ड आउट द हाफ ऑफ द नटमैग ग्रोव्स। अब कई लोग यहाँ पर लिखेंगे आपका वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से आपकी सुनामी हुई और सुनामी ने आपके जो है आपकी जितनी भी क्रॉप्स थी उसको डिस्ट्रॉय किया, ना कि आपका वोल्केनिक इरप्शन ने। सो आपका सुनामी जो होगा वो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। So this is all about for the day. If you like this video then make sure you subscribe my channel, also hit the like button that is below you. Bye bye.